بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بارہا آپ علماء کے زبانی سنتے رہتے ہیں، اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی جس نے حج بیت اللہ کا حج کیا اور ایمان کی حالت میں کیا تو وہ اپنے گھر والوں کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی ضمن میں الحمدللہ عز و جل آج ہم ثواب کی نیت سے، یاد رکھیے ہر کام جب بھی آپ نیک کام کریں، اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی، ثواب کی نیت ہوگی، اللہ عز و جل کی رضا کی نیت کرتے ہوئے آپ کسی بھی نیک اور عمل خیر کے لیے قدم بڑھائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ ابھی ہم حاجی ماسٹر طاہر بٹ صاحب کے یہاں آئے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ خوش قسمت یہ ہیں، ایسے تو الحمدللہ تعالیٰ لوگ کرتے ہیں آج، لیکن میں ان کو مبارکباد دوں گا اس وجہ سے کہ الحمدللہ تعالیٰ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی، اور الحمدللہ تعالیٰ یہ اپنی فیملی کے ساتھ، ان کی امی بھی ان کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ اور دیگر اور بھی ان کے الحمدللہ تعالیٰ ساتھی دوست تھے، اور ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ خیر یہ سفر تو برکت والا ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ بعض لوگ تو جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں، بعض تو پہلے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو طاہر صاحب، حاجی صاحب، آپ بتائیے کہ آپ نے وہاں پر بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو واقعی میں وہاں جا کر ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میں ہمیں پہلے سیکھنا چاہیے، وہاں بعض لوگوں کو کیا کیا دقتیں محسوس ہوتی ہیں، آپ نے وہاں پر کیا دیکھا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ اپنے انداز سے بتائیے۔ جہاں تک میں نے وہاں دیکھا، سیکھ کے جانا بہت ضروری ہے۔ جی میں نے بھی پہلے، مجھے بھی مختصر اتنا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا وہاں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جی تو میں نے جہاں تک اپنے جو میرے علماء تھے، میں نے ان سے رجوع کیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے تو مجھے کچھ آپ بتائیں۔ جی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک دعوت اسلامی کی ایک بک ہے جس کا نام ہے رفیق الحرمین، آپ وہ لے لیں، اور اس پہ پورا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ جی اس میں آپ کا جو اور بھی جو ضروری مسائل ہیں وہ پورے ڈیٹیل میں وہاں بتائی گئی۔ اچھا حاجی صاحب، ایک سوال اس میں عرض کروں گا، کیا آپ نے خود سے ہی اس کا مطالعہ کیا یا کسی کی ہیلپ بھی لی، کسی دعوت اسلامی کے مبلغ، کسی عالم کی ہیلپ لی اس کو پڑھنے میں، یا آپ نے خود سے سمجھا، اسے پریکٹیکل کیا یہاں پر اور پھر اس کے بعد تشریف لے گیا؟ پہلے تو میں نے اس کا مطالعہ خود کیا، جی جہاں سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جی جہاں سے مجھے لگا کہ اس میں مجھے کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے سمجھنے میں، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ میں نے علماء سے بھی رابطہ کیا، میرے بھائی ہیں حاضر، ان سے بھی میں پوچھتا رہا۔ جی پھر جہاں تک مجھے اور مزید اگر مجھے جاننا تھا تو میں نے وہ یوٹیوب پہ ہمارے مفتی اکبر صاحب ہیں، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، تو ماشاءاللہ وہاں بھی اگر مجھے کوئی پرابلم آتی تھی تو میں امیجیٹ مفتی اکبر صاحب کی اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے جو علماء تھے، جی ان کی جو چھوٹی چھوٹی کلپس تھی وہ یوٹیوب پہ موجود تھی، جی وہ میں ان کو دیکھتا رہا، تو ماشاءاللہ مجھے کوئی وہاں پرابلم نہیں آئی، کیونکہ میں ایک تیاری کر کے گیا ہوا تھا پوری، کہ میں نے کیسے عمرہ کرنا ہے، کیسے میں آپ کو بات ایک بتاؤں کہ جی ایک چیز اگر بندہ پڑھ کے جاتا ہے نا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں رش بہت ہوتا ہے، جی اور وہاں اور بھی بہت کام ہوتے ہیں آپ نے جو کرنے ہیں۔ جی تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے نوٹس بنائے تھے، مطلب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے کون کون سے سٹیپس ہیں، اور ایک سٹیپ ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ جی سب سے پہلے عمرے میں مطلب ہے کہ آپ نے میں جو اپنی بات بتاؤں تو ہمیں یہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مدینہ شریف جانا ہے، جی تو ہم 4-5 دن پہلے میں یہاں مدینہ شریف کا ہی پڑھ رہا تھا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر کیسے حاضری دینی ہے،
दुआ कैसे मांगनी है जी, जाना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, वहाँ सलाम कैसे अर्ज़ करनी है। तो मुख्तसर सा हम पढ़ रहे थे वो सारा। तो इन बिटवीन जब हम दिल्ली पहुँचे, मेरी फ़्लाइट दिल्ली से थी, दिल्ली पहुँचे तो वहाँ जाके हमें पता चला कि भाई आपकी जो फ़्लाइट है वो उन्होंने चेंज कर दी है, आपने आप मदीना नहीं तो मक्का जाना है। फिर मक्का में आपको पता है कि मदीना में थोड़ा काम कम होते हैं, तो मक्का में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर हमने वहाँ भी थोड़ी, हमें 3 दिन पहले बुलाया था दिल्ली, वहाँ भी हमने थोड़ा मुताला किया। वहाँ जो हमारे दीनी रहनुमा थे वो हमारे पास वहाँ आते रहे बीच में, वो हमारी रहनुमाई, और जो हमारे साथ जो ये फीमेल थी उनकी रहनुमाई के लिए भी वहाँ आते रहे। उधर भी वहाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ ग्रुप हमारे बने हुए। अच्छा, इसका मतलब वहाँ बाज़ाब्ता इस तरह के आपको ग्रुप्स मिलते हैं, किसी को कोई डिफ़िकल्टी आए, किसी को अरकान के बारे में कुछ पूछना हो तो इस तरह की कोई हेल्प मिलती है? अगर आपकी नीयत सीखने की है तो आपको वहाँ मौका मिलेगा सीखने, अगर आपकी नीयत है जी। अब आपकी नीयत ही नहीं है, आप बाजार घूमते रहेंगे, आप जस्ट एक ऐसे, मैक्सिमम जहाँ तक मैंने पाया लोग क्या करते हैं कि उनका ये है कि वो जस्ट एक उनके माइंड में है कि हज है करना है, ये फ़र्ज़ है जी, बस उधर जाएंगे, उनको यह कि हमारे नाम के साथ हाजी लग जाए। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी लोग मेरे साथ थे, उनको जो सीखा नहीं था उनको काफ़ी मसाइल। जी जी जी, भाई साहब यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, ये हकीकत है कि अक्सर व बेशतर नाइल्मी की वजह से, इल्म की हवा ना लगने की वजह से, उलमा के साथ ना जुड़ने की वजह से, दीन के साथ ना जुड़ने की वजह से अक्सर व बेशतर लोगों का यही रहता है, यार अब मैंने हज करना है, वहाँ जाके नहीं यार यहाँ जैसे लोग कर रहे हैं, वो देखने का जो एक रहता है कि नहीं मैं देख के इस तरह करके आ जाता हूँ। तो हकीकत यही है कि जितने इंसान को फ्यूज़ो बरक़ात या हकीकत में जो सीखने के बाद हज का इंसान को फजीलत मिलती है, कि जैसे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी जो हजूर ने फरमाया कि आप हज किया करो, तो इसके आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए हज किया करो क्योंकि ये गुनाहों को इस तरह जो है वो ख़त्म कर देता है हज, जिस तरह पानी जो है वो मैल को ख़त्म करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हकीकत यही है तो प्यारे नाजरीन, इस रियाज अहमद इस्लामिक वे चैनल की वसादत से मैं आपको भी यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम सबको हज बैतुल्लाह की हाज़िरी बार बार नसीब होती रहे, और इनकी ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करीम हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए, मदीना शरीफ की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए, अपने माथे की आंखों से हम भी जो है वो खाना काबा का की ज़ियारत करें, तवाफ़ करें, सफ़ा और मरवा की हम सही करें, रमी का हमें मौका मिले, और अरफात में ठहरने की ये तमाम सआदतें मिलें जो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हाजी साहब जो है वो जी जी। तो एक बात मैं और बोलूँगा कि जितने भी मेरे इस्लामी भाई, इस्लामी बहन ये वीडियो देख रहे हैं जी, कि आप कोशिश करें कि जवानी में ही अगर आपका हज हो जाए तो वो बेहतर है। हाँ, बड़ा हजरत इसमें हज करना इतना आसान नहीं है, क्यों मेरी उम्र अभी 35-36 साल है जी, हमें भी वहाँ प्रॉब्लम्स आई जी, तो वहाँ काम बहुत होता है, एक दिन में कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते से आप जाओगे कि आपको गवर्नमेंट बहुत सी रास्ते से निकालेगी, कोई पता नहीं आपको कौन से रास्ते से आप चले जाएं जी। तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि जवानी में आप हज करें तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर, यानी जिस पे हज फ़र्ज हो वो जवानी में ही कोशिश करे, और तभी जाकर, वरना वहाँ अरकान में उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यानी सही मानों में जिस अंदाज से आदमी वो करता है उसको मुश्किलात आती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, यहाँ से हमें हाजी साहब से एक मदनी फूल मिलता है, वो ये कि जितने भी साहिब सरवत लोग हैं, साहिब इस्तात हैं, जिनके ऊपर सही मानों में हज फ़र्ज़ है, वो ये ना देखें जब हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, अभी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, ये सब निभाएंगे और 60 या 65-60 में हज करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जब आप साहिब इस्तात हो जाएँ, अल्लाह आपको जो है वो साहिब इस्तात के उस ज़ुमरे में दाखिल कर दे, आप फ़ौरन तरकीब बनाइए, और इसके लिए आपको सफ़र कर लेना चाहिए, इसी में जो है वो कामयाबी है। हज़रत कुछ और आप नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि जैसे वहाँ पे जब हम एंटर जो है खाना काबा शरीफ को, यूँ ही हमारी पहली नज़र जैसे जो है लोगों का जहन रहता है कि मैं ये दुआ करूँगा, वो दुआ करूँगा, तो आपने जब पहली नज़र आपकी पड़ी खाना काबा पर तो आपने क्या दुआ फरमाई, आप इसके बारे में जो है वो इजहार फरमा दें, ताकि नाजरीन को भी एक सबक मिले कि जब हमें भी ये सादत मिले तो इंशाअल्लाह ताला हम ये दुआ ज़रूर करेंगे। जी,
जब हम काबा शरीफ में पहुँचे तो जहाँ तक मेरा मानना था, मैंने किताबों में पढ़ा था जी, मेरे पीरो मुर्शिद है, उनका कहना ये था कि आपकी नज़र जब काबा शरीफ पे पड़े तो सबसे पहले आपने ये दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं जब तक आपके घर में हूँ जी, मैं जितनी भी नेक और जायज़ दुआएं करूँ उन सबको कबूल और मकबूल करूँ। सुबहान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, बड़ा अहम नुक्ता है ये। बाज़ लोग सिर्फ जाते हैं, उनका ये जहन होता है जी मुझे जॉब के लिए दुआ करनी है, मुझे सिर्फ औलाद के लिए दुआ करनी है। बड़ा अहम नुक्ता है ये कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रेफरेंस देते हुए जो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अत्तारी हैं, इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पीर व मुर्शिद का जो ये फरमान मुझे बार बार याद आ रहा था कि जब मेरी पहली नज़र खाना काबा पर पड़ी तो मैंने ये दुआ फरमाई कि मौला जब तक मैं यहाँ रहूँ तेरे घर में, जितनी पहले दुआ करूँ बाद में दुआ करूँ, मौला सबको कबूल फरमाना। तो इसमें जो है एक चीज़ रहती है जो समझ में आने वाली है, यानी जितनी भी दुआ उस वक्त की उसके बाद करेंगे, अल्लाह ताला तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। फिर मौका है ना आपके पास, आप मांगे अपने जो है जो बे औलाद हैं वो औलाद के लिए मांगे, जिनको जॉब नहीं वो जॉब के लिए मांगे, जो घरेलू नाचाकियों का शिकार हैं सारी चीज़ों के लिए दुआ करें। यकीनन इस जुमले की वजह से अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये थी कुछ हमने जो है वो हाजी ताहिर भट्ट साहब से अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये जानकारी ली, ताकि इस जो है वीडियो से जो इस्लामी भाई देखें वो भी समझें कि हमें क्या क्या करना चाहिए सफ़र के दौरान। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे सामने आब ज़मज़म शरीफ और ये खजूरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो प्यारे नाजरीन, एक नुक्ता अर्ज़ करके मैं इख्तिताम की जानिब जाऊँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है कि दो पानियों को जो है वो आप खड़े होके पिएँ। एक है आब ज़मज़म शरीफ का, अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहाँ पर माशाल्लाह इस पर तो मदीना शरीफ का गुंबद भी बना हुआ और दूसरी तरफ खाना काबा शरीफ। माशाल्लाह हज़रत ये आपने गिलास जो है वहीं से लिया मार्केट से क्या? वहीं से जी माशाल्लाह, ये बड़ी बरकत मक्का शरीफ से माशाल्लाह। तो इसके बारे में फरमाया है कि जो शख्स अच्छी नीयत के साथ कोई दिली मुराद दिल में लिए इस पानी को खड़े होकर किबला शरीफ की तरफ अगर इसे पिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तब और जो दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सआदत भी लेंगे। और फिर ये जो खजूर रखें इसके बारे में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि खजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब है, इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। अब की बार इंशाअल्लाह फिर कभी जब मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या क्या फ़वाइद हैं। तो मैं इस वीडियो को और इस मुलाकात को यहीं पर इख्तिताम करूँगा और तमाम नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप जो है ये दिल के अंदर एक तड़प रखें कि इंशाअल्लाह ताला हमने भी जो है वो मदीना शरीफ देखना है अपनी आंखों से और हमने भी खाना काबा को देखना है। ये तड़प इंशाअल्लाह ताला, अभी इनके भाई बता रहे थे कि इनकी पहले से अभी प्लानिंग नहीं थी लेकिन एक तड़प रहती थी कि हम भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इनको जवानी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हज की सादत अता फरमाई। इनकी वालिदा थी, इनकी एलिया मोहतरमा थी। तो हम जो है तमाम इस्लामी भाई इनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इनके वसीला से हमें भी अल्लाह ताला ये शर्फ अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।